Hello student, today we will going to study the next topic of the principle of the management, that is the significance of the principle of the management. तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे that is about the significance. तो significance में सबसे पहला दिया गया है it providing managers into the useful insight into the reality. Second one is the optimum utilization of the resources and effective administration. Then third one is the scientific decision. Fourth one is the meeting the changing environmental requirement and fulfilling social responsibility, management training, education and research. So these are the significance of the principle of the management. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक दिया गया था that it provides manager using useful insight into the reality. Basically it helps the manager. ये मैनेजर को हेल्प करता है, इट प्रोवाइड गाइडलाइंस, ये गाइड करता है मैनेजर को. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन. हमारे रियल वर्ल्ड में जिस प्रकार का सिचुएशन या चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम्स मैनेजर आर फेसिंग, different types of situations they are facing, the complex situation, dynamic situation. तो उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये मैनेजर को एक गाइड किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा. Adherence to these principles will improve their knowledge, ability and understanding of various managerial situation and circumstances. So it also helps manager to increase their knowledge, their ability, and to solve the various managerial situations or problem they are facing. So basically it provides the guidelines to the manager so that they can sort out or they can handle the problems which they are facing during the changing environment. Next is the optimum utilization of the resources and effective administration. You must be knowing about the word optimum utilization of the resources. Resources का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो भी sources हैं, it may be in terms of the financial, it may be in terms of the human, it may be in terms of the machineries or technological. तो the resources with the companies are limited. हमारे यहाँ कंपनी में resources जो है वो limited होती हैं. तो managers principles equip the manager to see the cause and effect of their decision and action and thus reduce wastage. तो यहाँ पे managers को guidelines मिलता है principal के द्वारा, ताकि वो लोग हमारे पास जो भी resources हैं उसके basis पे वो better decision ले सके, action ले सके, ताकि wastage को कम से कम reduce किया जा सके. और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस हमारे पास जो भी रिसोर्सेस, इट में भी द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मशीनरीज का हो गया या ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए, उनका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सके ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो मिनिमम कॉस्ट में. तो दिस इज व्हाट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस एंड effective administration. Next is the scientific decision. So decision must be based on fact, thoughtful and justificable in terms of intended purpose. Management principle must be timely, realistic and subject to measurement and evaluation. Principles are free from bias and prejudice. यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स मैनेजर के लिए बोला गया है कि जो डिसीजन लिया जाता है मैनेजर के द्वारा वो सिचुएशंस के हिसाब से होते हैं, तो उनको वो इफेक्टिवली हैंडल कर सके, ताकि जो थिंकिंग बेस्ड होना चाहिए, साइंटिफिकली वो सोच समझ के डिसीजन ले, ना कि गैसिंग के बेसिस पे. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है दे मस्ट बी टाइमली. टाइमली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है, उसके अंतर्गत होना चाहिए. रियलिस्टिक, it deals with the basically real world situation, then subject to the measurement and evaluation. तो जो भी principles बनाए जाते हैं
उसके बेसिस पे वो हम हेल्प कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसको एसेस कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम एक्शन ले सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस। बायस मतलब पार्शलिटी यहाँ पे नहीं हो जाती, पहले से आप उसका जजमेंट आप कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप एक्शन ले सकते हो। दिस इज व्हाट साइंटिफिकली डिसीजन लेने, पहले से सोच समझ के डिसीजन लेना, ना कि गेसिंग के बेसिस पे डिसीजन लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक डिसीजन। नेक्स्ट इज द मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर effective and dynamic. Dynamic means as per the changing environment and thus help the organization to meet the changing requirement of the environment. तो ये हमको जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ये हमको हेल्प करते हैं कि हमारे एनवायरमेंट, हम लोगों ने बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने अलग अलग डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था. We have in that particular dimensions we have read about the social dimension, economic dimension, then technological dimension, political dimension and legal dimension. तो हमारे आसपास के environment में हमेशा changes होते रहते हैं. तो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये हमको ये हेल्प करता है कि हम जो एनवायरमेंट हो रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने आप को, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो चेंज कर सके. तो दिस इज ऑल अबाउट द मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट. Then fulfilling social responsibility also. So due to the increased awareness of the public forces, all companies are required to fulfill social responsibility. Social responsibility we have read in 11th class 11, one of the chapter is the social responsibility. उस chapter में हमने ये पढ़ा था कि as a businessman we are having some social responsibility towards our customers, our employees, government, stakeholders. तो ये जितनी भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है कि वॉट एवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी अलग अलग लोगों के लिए है, मे बी फॉर द कस्टमर्स हो गया कि उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट या देना या रीजनेबल रेट पे चीजें प्रोवाइड करना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, देन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट की प्रॉपर टाइम पे टैक्स देना या पॉलिसीज को फॉलो अप करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज की. देन आफ्टर दैट जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमको अवेयर करवाता है कि हम हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग फुलफिलिंग करें. इन अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के अलावा भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. It also guides the manager in performing the social responsibilities. Then after that, management training, education and research. The principle of management are the core of the management and are helpful in increasing the knowledge which forms the basis for the management training and research. You know, हमारे environment में लगातार changes होते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस होते रहते हैं, कुछ नया होता है, क्रिएटिविटी. तो यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं. हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसर्च वर्क को हम बढ़ावा दे सकते हैं. तो दिस कैन बी डन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट. तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से हम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, हम नए नए लोगों के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए नई नई चीजें बनाना, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना. तो ये हम किस तरीके से करेंगे? थ्रू गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज, टू इंक्रीज द रिसर्च वर्क. तो इन सब के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. तो ये आपका द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट जो है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट.